So students, in our previous lecture we have learnt about the earth interior surface, faults and faults, and today our lecture topic is earthquake. So students, what is an earthquake? A sudden jerk or movement of earth surface is called earthquake. However, this movement is not enough to shake the earth surface, so it can be defined as a form of energy of wave motion transmitted through the surface layer of the earth. No energy released in the form of waves called seismic wave. Earthquake may originated inside the earth crust or near the earth surface or in the upper mantle. So students, हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ज़लज़ला क्या है? जब ज़मीन की सतह के ऊपर एक सडन जर्क होता है, एक झटका लगता है, तो उस झटके की सूरत, तो वो जो झटका है वो क्या है? ज़लज़ला है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है ये ज़मीन की सरफेस को हिलाने के लिए काफ़ी नहीं है। सो क्या होगा कि एनर्जी जो होगी वो वेव मोशन की फॉर्म में ट्रांसमिट होगी अर्थ की सरफेस लेयर तक। तो फिर ये एनर्जी क्या करेगी? रिलीज़ करेगी वेव को इन दी फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव। अब ये जो सिस्मिक वेव्स हैं ये क्या करेंगी? ज़लज़ला काज करेंगी। अब जो अर्थक्वेक है हम उसको ओरिजिनेट कर सकते हैं कि वो कहाँ पर हो सकता है? या तो वो होगा क्रस्ट के इनसाइड, डीप इनसाइड, या फिर वो अर्थ की सरफेस के करीब होगा, या फिर वो कहाँ पर होगा? अपर मेंटल में होगा। सो स्टूडेंट्स, this is the focus and it's the place of origin of earthquake inside the earth crust. It is called focus. The point that is directly above the above the focus on the earth surface is called epicenter. So students, it's all about earthquake. Tsunami. Earthquake also occur in the ocean floor. They create up to 30-meter huge wave in the ocean. These waves are called tsunami in the Japanese language. Tsunami cause massive destruction in the coastal areas. The Indian Ocean tsunami was considered the most destructive tsunami to date. It occurred on 26 December 2004 and killed more than 1,50,000 people of 11 countries bordering the Indian Ocean. So students, सुनामी क्या है? जब ज़लज़ला जो होगा वो समंदर की तह पर होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। और इनकी जो वेव्स हैं तकरीबन 30 मीटर ह्यूज होंगी। इसके अलावा ये जो वेव्स हैं इनको सुनामी जो है वो जापानीज़ वर्ड में कहा जाता है। वर्ड सुनामी क्या है? जापानीज़ लैंग्वेज का है। सुनामी जो होगा वो मैसिव डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है कोस्टल एरियाज़ में। इसके अलावा जो इंडियन ओशन था उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। उस टाइम इंडियन ओशन जो था, जो 2004 में 26 दिसंबर 2004 में हुआ, उसमें तकरीबन 1,50,000 लोग मारे गए। और वो लोग जो थे वो तकरीबन 11 कंट्रीज़ के थे, लेकिन उनकी जो बॉर्डरिंग थे वो इंडियन ओशन के साथ थे। Page number 5. Causes of the earthquake. Most of the earthquake are caused by an elastic strain produced in the rock masses inside the crust. This phenomena is defined in the elastic rebound theory presented by Harry Fielding Reid, an American geologist. This theory explains that earthquakes occur when rocks on either side of the fault are displaced due to some tectonic activity for many years. As a result, a strain is produced and accumulated at a point in the rocks. When this strain exceeds the strength of the rocks on the opposite side of the fault move forcefully. This results in a disastrous earthquake. This type of earthquake is called a tectonic earthquake. Earthquakes are also caused by volcanic activity, and such type of earthquake is called volcanic earthquake. A volcanic earthquake occurs due to release of elastic strain during a volcanic eruption. So students, एक अमेरिकन जियोलॉजिस्ट हैरी फील्डिंग ने एक थ्योरी पेश की। इसने इस थ्योरी में ज़लज़ले कैसे वजूद में आते हैं इसकी वजाहत की। इसके मुताबिक जब टेक्टोनिक रॉक्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होंगी तो दबाव यानी स्ट्रेन पैदा होगा और वो रॉक्स की सतह पर अकोमुलेट हो जाएगा। अकोमुलेशन में जमा हो जाएगा। जब ये स्ट्रेन चट्टान के ऊपर जोर डालेगा, जब ये दबाव चट्टान के ऊपर पड़ेगा तो चट्टान जो है वो फोर्सफुली अपोजिट साइड पर हरकत करेगी, तो इसके नतीजे में एक तबाहकुन ज़लज़ला आएगा। इस किस्म के ज़लज़ले को हम क्या कहते हैं? टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं। इसके अलावा कुछ अर्थक्वेक ऐसे भी हैं जो वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से वजूद में आते हैं, और इस तरह के ज़लज़लों को हम क्या कहते हैं? वोल्केनिक अर्थक्वेक कहते हैं। Effects of earthquake. Earthquake can cause a loss of human and animal lives. They may change the geological feature and damage man-made structure. They also cause volcanic eruption, fire and flood. So student, earthquake के जो हैं वो क्या क्या असरात हो सकते हैं?
अर्थक्वेक जब भी ज़लज़ले आते हैं तो उसके नतीजे में इंसानी ज़िंदगियाँ जो होती हैं वो नुकसान का शिकार होती हैं। इसके अलावा जानवरों की ज़िंदगियाँ भी, हम लोग माली और जानी दोनों लिहाज से अर्थक्वेक में तबाह हो जाते हैं। इसके अलावा जो जियोलॉजिकल फीचर्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं, मीन इंसानों की बनाई हुई चीज़ें भी तबाह हो जाती हैं। जिस तरह बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं वो गिर जाती हैं, इसके अलावा दरख्त गिरते हैं, जानवर मर जाते हैं, बहुत सारी सड़कें डैमेज हो जाती हैं। ये सब के सब क्या हैं, अर्थक्वेक के अफेक्ट्स हैं। इसके अलावा वोल्केनिक अरप्शन, फायर और फ्लड वगैरह भी इसकी वजह से वजूद में आते हैं। हाउ इज़ द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मेजर्ड ड्यूरिंग an earthquake? Seismic waves are produced in the earth. These waves are recorded by an instrument called seismograph. The magnitude of the earthquake is then measured with the help of a Richter scale or the Richter magnitude scale. Other scales used to measure the magnitude of earthquake are the moment magnitude scale and the Mercalli scale. So students, earthquake की जो intensity है उसको हम कैसे measure कर सकते हैं? जैसे ही ज़लज़ला होता है तो सिस्मिक वेव्स जो वो ज़मीन की सतह पर प्रोड्यूस होती हैं। अब जब ये वेव्स प्रोड्यूस होती हैं तो उनको एक इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर कर लिया जाता है। किसको मेजर करते हैं हम? वेव्स को मेजर करते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। और जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनको हम सिस्मिक बोलते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ बोलते हैं। जो मैग्नीट्यूड होगा अर्थक्वेक का उसको हम रिचर स्केल की मदद से मेजर करेंगे। तो अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं उसको सिस्मोग्राफ से मेजर करेंगे, जो मैग्नीट्यूड हो उसको हम रिचर स्केल से मेजर करेंगे। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक। मोस्ट अर्थक्वेक अकर इन सेस्मिक बेल्ट. These belts are created at plate boundaries where tectonic plates collide and cause earthquake. The circum-Pacific belt is the most important seismic belt. So student, जो ज़लज़ले हैं वो seismic belt में अकर होते हैं। अब जो सबसे important seismic belt है वो हमारे पास कौन सा है? circum-Pacific belt है। और इस बेल्ट की वजह से कौन कौन से रीजन हमारे पास आते हैं seismic belt में? जापान, न्यूजीलैंड, अलास्का, कैलिफोर्निया एंड परसू, ये सारे के सारे किस बेल्ट में आते हैं? सर्कम-पैसिफिक बेल्ट में आते हैं। और जब भी ज़लज़ला आता है तो ये तमाम एरियाज क्या होते हैं? बैडली अफेक्टेड होते हैं। Alpine belt crosses the Mediterranean region and passes through towards Asia, the circum-Pacific belt. अब अल्पाइड बेल्ट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? स्पेन, फ्रांस, ग्रीस, तुर्की, लीबिया, मोरक्को, पाकिस्तान एंड ईरान are some countries located across this belt. Volcanism. Volcanism is a process that involves the eruption of molten rocks fragments and hot gases from the earth crust. Volcanoes are mostly created at the boundaries of the tectonic plates. The molten rocks or magma comes out as a lava from a pipe-like path in the crust called vent. The mouth of the volcano is a crater. Successive eruptions destroy the wall of a crater and create a vast bowl-shaped depression called the caldera. So students, volcanism वो प्रोसेस है जिसमें रॉक्स फ्रैगमेंट, हॉट गैसेस और मोल्टन रॉक्स की eruption होती है अर्थ क्रस्ट में। eruption में टूट फूट जाना, फट जाना। वोल्केनोज जो होते हैं वो मोस्टली कहाँ पर क्रिएट होते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज में क्रिएटेड होते हैं। इसके अलावा मोल्टन रॉक जब ज़मीन की सतह से ऊपर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेंट बोलते हैं। और वोल्केनो के जो माउथ है, मुंह है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोज। वोल्केनोज आर क्लासिफाई ऑन द बेस ऑफ देयर फॉर्मेशन एंड एक्टिविटी। वोल्केनोज को हम किसकी बेस पे क्लासिफाई करते हैं? फॉर्मेशन, वो कहाँ से बनते हैं, और एक्टिविटी की बेस पे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फॉर्मेशन। द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ वोल्केनोज बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन. First one is composite volcanoes. These volcanoes are formed over time by the layer of lava, volcanoes, ash and rocks. So composite volcanoes किसकी वजह से बनते हैं? Layer of lava की वजह से, ash की वजह से और rocks की वजह से बनते हैं। Sometimes they are formed from the thick magma that block inside a volcano and causes it to explode. अब sometime क्या होता है? ये एक thick magma की वजह से बनते हैं और इसकी वजह से ये क्या करते हैं? इनसाइड का जो वोल्केनो है उसको ब्लॉक कर देते हैं और जिसकी वजह से एक्सप्लोजन में धमाका, तो एक धमाका वजूद में आता है। These volcanoes have usually steep inside and are also called stratovolcanoes. Mount Fuji, Japan, Mount St. Helens, Washington and Mount Shasta, California are example of composite volcanoes. So कौन कौन से examples हैं? Mount Fuji,
Mount St. Helens and Mount Shasta are the example of composite volcanoes. Second is shield volcanoes. These volcanoes are formed from lava flows during volcanic eruption. Fluid-like basaltic lava spread out to a vast area. When it cools down, the lava takes the form of a thin sheet on the surface of the volcano. Shield volcanoes have gentle slope and they are clear in Hawaii or shield volcanoes. So students, shield volcanoes कैसे बनते हैं? ये लावा के फ्लो से बनते हैं. वोल्केनिक eruption के दौरान ये लावा जो है ये एक बहुत बड़े एरिया पे स्प्रेड हो जाते हैं. जब ये ठंडे हो जाते हैं तो ये इसकी पतली पतली शीट्स बन जाती हैं वोल्केनो की सतह के ऊपर. इसके अलावा जो शील्ड वोल्केनोज होते हैं उनका जो स्लोप है वो जेंटल होता है और ये ज़मीन के सबसे बड़े लार्जेस्ट वोल्केनोज होते हैं. Page number 7, cinder cones. These volcanoes have steep slopes and are formed from loose rocks fragments. These fragments include lava, volcanic ash, cinders, or scoria. Scoria is a dark-colored basaltic rock that has bubble-like cavities. During the eruption, rock fragments eject under high pressure from the vent like a fountain. Cinders accumulate in the form of a conical hill called a cinder cones. Paricutin in Mexico is the best example of cinder cones. सो स्टूडेंट, साइडर कोन्स क्या होते हैं? ये डीप स्लोप्स होते हैं और रॉक्स की जो लूज फ्रैगमेंट्स हैं उनसे बनते हैं. इन फ्रैगमेंट्स में क्या क्या होता है? लावा होता है, ऐश होती है, स्कोरिया होता है. अब स्कोरिया क्या होता है? ये एक डार्क कलर ब्लैक बासाल्टिक रॉक होती है. स्कोरिया क्या होती है? एक डार्क रॉक होती है जिसमें बबल लाइक कैविटीज़ होती हैं. अब eruption के दौरान जो रॉक्स की जो फ्रैगमेंट्स हैं वो हाई प्रेशर पर इजेक्ट होंगी और क्या बनाएंगी? एक फाउंटेन बनाएंगी. इसके अलावा साइडर जो होगा वो कोनिकल हिल के ऊपर अकोमुलेट हो जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? साइडर कोन बोलते हैं. लास्ट वन इज लावा डोम्स. लावा और वोल्केनिक डोम्स आर फॉर्म्ड व्हेन लावा एक्सट्रूड एंड अकोमुलेट अराउंड द वेंट. इट प्रोड्यूस अ स्मॉल वोल्केनिक माउंट कॉल्ड अ वोल्केनिक डोम. The Lassen Peak Dome in Northern California is known as one of the largest volcanic dome. So student, lava domes क्या होते हैं? ये तब बनते हैं जब लावा एक्युमुलेट हो जाएगा वेंट के ऊपर. इसके अलावा ये प्रोड्यूस करेंगे स्मॉल वोल्केनिक माउंट को जिसको हम बोलेंगे वोल्केनिक डोम बोलेंगे. अब जो लेसन पीक डोम है नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में वो लावा डोम की बेस्ट एग्जाम्पल है. क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ एक्टिविटीज़. There are three types of volcanoes on the base of their activity: active volcanoes, dormant volcanoes, and extinct volcanoes. So students, there are three types of volcanoes. First one is active volcanoes. A volcano is called an active volcano if it has experienced a volcanic activity in the past 10,000 year. So students, वो volcano active volcano होगा अगर उसने पिछले 10,000 सालों में, पिछले तकरीबन 10,000 ईयर्स में उसने वोल्केनिक एक्टिविटी को एक्सपीरियंस किया हो. डॉर्मेंट वोल्केनो कौन सा वोल्केनो होता है? वो वोल्केनो होता है जो कि रप्चर नहीं होता, वो स्टॉप हो चुका है लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में वो किसी भी टाइम पे एक्टिव हो सकता है और उसकी वजह से वो रप्चर भी हो सकता है. लास्ट वन इज एक्सटिंक्ट वोल्केनो. ये जो वोल्केनो है इसके बारे में ये है कि ये पिछले जो 10,000 सालें उसमें ये बिल्कुल भी रप्चर नहीं हुआ और इसके बारे में ये पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में भी ये बिल्कुल किसी भी किस्म की eruption नहीं करेगा. इस टाइप